Click here to subscribe our channel. Do not forget to press bell icon to get regular updates of free videos. This class is for International Economics paper, which is an optional paper in semester number 5. So those who are currently in semester number 5 and those who are choosing International Economics as an optional paper. So basically we will be providing here classes for semester number 5, International Economics, then Public Economics and Development Economics. Development Economics will be the core paper, the compulsory paper, and out of optional paper, International Economics class will be provided as well as Public Economics class will be provided, both offline as well as online. This class is for International Economics. So first of all, write down the content for International Economics. The syllabus is divided into two parts. So first part A or section A. Section A will have a weightage of 60%. You have to attempt any 3 question out of 5. So 3 question, each question will have a weightage of 15 marks. So in terms of marks, it is 45. Part A will include unit number 1, that is introduction. On first sheet you can briefly note down. Introduction will include chapter number 1 and chapter number 2. Then main thing will be unit number 2. Second unit is theories of international trade. Theories of international trade. And theories of international trade will be from chapter number 3 to chapter number 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theories of international trade. Bulk of your syllabus is unit number 2. Then unit number 3. Third unit is international trade policy, which will be mainly including instruments of trade like tariff, quota and so on. Trade policy will include chapter number 9 and chapter number 10. So unit number 1, 2 and 3, that will be first section. You have to attempt any 3 question out of 5. Any 3 question out of 5 questions. And section B or part B will include only 1 unit, that is unit number 4. And weightage for unit number 4 will be remaining 40%. 30 marks का question करना है. There will be 3 question given to you and you have to attempt any 2 question out of 3. And unit number 4 is international, in that form, international macroeconomic policy. International macroeconomic policy. Remember, approach for unit number 1, 2 and 3, that is section A. The approach of section A will be micro. It will be following a micro approach. And for second section, the approach will be macro. That will be the main difference. First section का approach micro होगा, second section का approach macro. And second section will include chapter number 14, certain pages हैं. Chapter number 17, chapter number 18, 19, 20. Chapter 14, 17, 18, 19 and 20. Remember जितने भी chapter अभी लिखे गए हैं, all chapter from reference book एक ही है. That is good thing about semester 5 International Economics paper. Paul Krugman. Paul Krugman के 10th edition के accordingly लिख रहा हूँ मैं. जो reference book लगी है वो है Paul Krugman का 10th है. So either you can buy a book directly or you can buy this reading. Main thing or main part of the syllabus is unit number 2. So I will start class with unit number 2, which is theories of international trade, chapter number 3 to chapter number 8. So from next page leave some space in case अगर कोई change आता है syllabus के अंदर
that you can copy again. So from next page write down unit number 2 first. Introduction का चैप्टर बाद में होगा. इंट्रोडक्शन में मेनली चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक ग्रेविटी मॉडल का कंसेप्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट चैप्टर इज लेस इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर रेलिवेंट फॉर पेपर. सो सेकंड यूनिट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. यूनिट नंबर 2 theories of international trade. Now theories of international trade, there are some traditional theories and some modern theories or new theories. We have to refer traditional theories as well as the new theories or modern theories. Divide traditional theories first. So theories of international trade, I am dividing it according to the chapter. Primarily we will deal with 4 different models. First model will be a Ricardian model of international trade, which is a comparative cost advantage theory. After that चैप्टर के सीक्वेंस में स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल होगा. आफ्टर स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल it will be HO model. HO is a Heckscher all-in model, and fourth model will be standard trade model. Standard trade model. Main pointer difference is Ricardian model is 2 by 2 by 1 model. It will be 2 by 2 by 1 model. 2 by 2 by 1 model means there will be 2 countries producing 2 goods by using only one factor of production. 2 countries, say home country and foreign country, producing 2 goods by say cheese or wine by using only one factor of production, and that one factor of production may be considered as labor. 2 countries, home and foreign, producing 2 goods, cheese and wine or food and cloth, whatever be the example, by using only one factor of production, that is labor. स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल से पहले मैं आपको एचओ मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज 2 by 2 by 2 मॉडल. सो ट्रेड बिटवीन 2 countries producing 2 goods by using 2 factor of production. So 2 factor of production, one factor of production is say labor, other factor of production could be capital or it could be land. Difference between specific factor model and HO model is that in a specific factor model it is 2 by 2 by 3 model. It is 2 by 2 by 3. So trade between 2 countries producing 2 goods by using 3 factor of production. Suppose labor is one factor, land denoted by T here, labor, land and capital. 3 factor of production मैंने लिया, labor, land और capital. But if I say that this country is producing 2 goods, say cloth and food, but to produce cloth firm require labor and capital, and to produce food they require labor and land. I repeat, to produce cloth they require labor and capital, and to produce food they require labor and land. इसका मतलब होता है labor is used in both, labor is being used in both industries, but land is specific to food and capital is specific to cloth. उस context में लैंड और कैपिटल स्पेसिफिक फैक्टर माने जाएंगे और जो लेबर है वो मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाएगा. तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल इज डीलिंग विथ 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिकार्डियन मॉडल ओनली विथ 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एचओ मॉडल 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. एंड बेस्ड अपॉन दिस एचओ मॉडल वी विल एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, सो इट विल आल्सो बी बेस्ड अपॉन 2 by 2 by 2 मॉडल, बट हियर अप्रोच विल बी रिलेटिव सप्लाई एंड रिलेटिव डिमांड. तो ब्रीफली आप ये पॉइंट याद रखेंगे. वी आर डिस्कसिंग 4 डिफरेंट चैप्टर एंड यूनिट नंबर 2 विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, देन इट विल बी चैप्टर नंबर 4, दिस इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6.
ये 4 मॉडल 4 डिफरेंट चैप्टर्स है। और क्वेश्चन के लिए बल्क ऑफ द क्वेश्चन वी कैन से एटलीस्ट यू विल गेट 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर, बिकॉज फर्स्ट सेक्शन देयर विल बी 5 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। So Ricardian model, specific factor model, HO model and standard rate models. Now you can start with the first model. Assumption clear रखेंगे, Ricardian model is 2 by 2 by 1 model. So right now in this first class we are dealing with only one factor protection, then we will add more factor protection. The first part is Ricardian model, chapter number 3 first. चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। चैप्टर नंबर 3 इज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, दिस इज a Ricardian model of comparative advantage. So as per Ricardian model it is 2 by 2 by 1 model. So trade is between home country and foreign country. They are producing 2 goods here, cheese and wine, by using only one factor of production, that is labor. तो मॉडल का assumption है 2 कंट्री है, 2 प्रोडक्ट है और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अभी इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं हो रही है, जस्ट फोकस ऑन 1 कंट्री फर्स्ट विदाउट ट्रेड। सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट होम कंट्री, सो होम कंट्री हैज ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। लेट अस सपोज home country has 2400 hour of labor available as a resource, वो उसका endowment है। तो home country के पास 2400 hour है, by using this time home country can produce cheese or home country can produce wine. Now how many unit of cheese economy can produce and how many unit of wine economy can produce, that depends upon what is the productivity of labor in home country. Labor की productivity determine करेगी how much goods economy can produce. Now to determine productivity I am using a term ALC, इसको आप रजिस्टर में लिख लेंगे। ALC को कहा जा रहा है यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट, कॉपी में लिखिएगा। ALC is unit labor requirement to produce cheese in home country. Unit labor requirement to produce cheese in home country. C प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहा हूं, चीज के लिए, L लेबर के लिए और E यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट के लिए। सो ALC is, I repeat, unit labor requirement to produce cheese in home country. Now if I say it is 4 hour, what does it mean? मैंने कहा ALC is unit labor requirement, इसका मतलब होता है 1 यूनिट चीज को प्रोड्यूस करने में होम कंट्री में it will take 4 hour. So in 2400 hour how many unit of cheese can be produced? Obviously 2400 upon 4. So if you write here quantity of cheese on x axis, remember if entire labor of economy is producing only cheese, then economy can produce 600 unit of cheese, 2400 upon 4. तो यहाँ जब आप ये कॉर्नर वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे L upon ALC। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। 2400 आवर टाइम है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 4 आवर लगता है। सो इन 2400 आवर इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 600 यूनिट ऑफ चीज। ना हाउ मेनी यूनिट ऑफ वाइन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, वो डिपेंड करता है ALW पे। हाउ टू रीड ALW? इट इज यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस वाइन इन होम कंट्री। टू प्रोड्यूस वाइन इन होम कंट्री हाउ मच टाइम इट टेक्स। Now if I say it is 6 hour, it means to produce 1 unit it will take 6 hour. 1 unit wine produce करने में it will be taking 6 hour in the home country. So how many unit of wine economy can produce? 2400 total time है, 6 hour लगता है 1 unit के लिए। 2400 upon 6, 400, but 400 को अगर आप जनरल टर्म में यहाँ लिखेंगे तो it will be L upon ALW.
और ये नंबर है 600 L upon ALC. Join both point with a straight line and this line is called production possibility frontier PPF. Why it is straight line वो mathematically prove हो जाएगा. Why production possibility frontier is a straight line. If you write equation of this line, I can write equation of this line as ALC into quantity of cheese. तो बताना what is ALC into quantity of cheese. ALC is time taken to produce 1 unit. If you multiply it by quantity of cheese, it will denote how much time it take to produce that quantity of cheese. Plus ALW into QW. ये हो जाएगा time taken to produce wine. And if you add both, its value can be less than or equal to total labor resource available. तो ALC into QC plus ALW into QW must be less than equal to L. This is the equation of production possibility frontier. और अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि what is slope of this line, तो what is slope of this line? How do you will calculate slope? Slope निकालने के लिए मैथमेटिकली क्या करेंगे? To calculate slope you will differentiate the function. dy by ds करते हैं. तो dy by ds करना है तो बताना y एक्सिस पे क्या है, वाइन, x एक्सिस पे चीज है. तो स्लोप निकालने के लिए आप चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाइन ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी करोगे. स्लोप कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करना है और इस डिफरेंशिएशन के लिए अब आप इसको ऐसे अरेंज करके ले सकते हैं. ALW into QW. अब लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो आप इक्वालिटी लिख दीजिए बिकॉज यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. L minus ALC into QC and in that case QW is equal to L upon ALW minus ALC upon ALW into QC. ये हो गया इक्वेशन. और इक्वेशन अगर हो गया तो अब यहां से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बताएंगे व्हाट विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन. आपको ये फंक्शन डिफरेंशिएट करना है. मैंने कहा dQW by dQC, तो इस पूरे फंक्शन को QC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे. इस पहले टर्म में QC नहीं है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. और QC के रिस्पेक्ट में करने पे ये ALC अपॉन ALW आ जाएगा. ध्यान से इस इक्वेशन को देख लेंगे. फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं QC के रिस्पेक्ट में. इस पहले टर्म में QC नहीं है, कांस्टेंट टर्म 0 हो गया. और रिमेनिंग टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा माइनस ALC अपॉन ALW माइनस ALC अपॉन ALW. सो व्हाट इज ALC एंड व्हाट इज ALW? ALC की वैल्यू 4 है, ALW की वैल्यू 6 है. तो इस एग्जांपल के अंदर स्लोप हो जाएगा माइनस 4/6 दैट इज 2/3. Slope of this line is 2/3. Now question is what does slope of PPF measures? जो लाइन का स्लोप आ रहा है ये कैलकुलेट क्या कर रहा है? अगर हमने कहा स्लोप की वैल्यू 2/3 है तो स्लोप ऑलवेज मेजर्स हियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी विच इज रिटन ऑन एक्स एक्सिस. जो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. सो इट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ cheese. So what is opportunity cost of cheese? Opportunity cost of cheese is 2/3. Minus sign can be ignored. Minus sign सिर्फ नेगेटिव स्लोप के लिए होता है. अब आप सेमेस्टर 5 में आपको मालूम होना चाहिए what is the meaning of opportunity cost. So what is opportunity cost of cheese? What is opportunity cost of attending this class? इस क्लास को अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो अदर एक्टिविटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं. So what is opportunity cost of cheese? The opportunity cost of cheese is the amount of wine that has to be given up. So if I say opportunity cost of cheese is 2/3, what does it mean? Opportunity cost of cheese is 2/3 means to produce one more unit of cheese, you have to give up 2/3 unit of wine. To produce one more unit of cheese, you have to give up 2/3 unit of wine. न्यूमेरिकल से जस्टिफाई करेंगे. एक यूनिट चीज प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर लगता है. एंड इन 4 आवर हाउ मेनी यूनिट ऑफ वाइन कैन बी प्रोड्यूस? टू प्रोड्यूस वाइन इट टेक्स 6 आवर. सो इन 4 आवर यू कैन प्रोड्यूस ओनली 2/3.
So opportunity cost of cheese is 2/3, and if you take the inverse of it, you will get the opportunity cost of wine. So if opportunity cost of cheese is 2/3, then opportunity cost of wine will be 3/2. जैसे होम कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, सिमिलरली यू विल फाइंड इट फॉर फॉरेन कंट्री. और रिकार्डियन मॉडल का कंसेप्ट कहता है कि होम कंट्री विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्शन इन विच इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेस. आई रिपीट द पॉइंट. एज पर रिकार्डियन मॉडल, home country will have comparative advantage in producing cheese if opportunity cost of cheese is less in home country as compared to the foreign country. होम कंट्री में चीज को प्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर फॉरेन कंट्री में चीज प्रोड्यूस करने के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है, इन दैट केस होम कंट्री विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग चीज. तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज एज वेल एज वाइन फॉर होम कंट्री एज वेल एज फॉर फॉरेन कंट्री. तो होम कंट्री के लिए हो गया ALC बाय ALW. कुछ नहीं करना, जब कभी कहा जाए फॉरेन कंट्री तो आप हर जगह स्टार मार्क करते जाएंगे. तो जैसे अगर मैंने L स्टार लिखा है तो फॉरेन कंट्री का लेबर रिसोर्स हो जाएगा. अगर उसको लिखूंगा ALC स्टार तो उसको रीड करना है हो यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस चीज इन फॉरेन कंट्री. और अगर ALW स्टार लिख रहे हैं तो यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस वाइन इन द फॉरेन कंट्री. तो ALC by ALW is opportunity cost of cheese. Similarly, ALC star by ALW star will be opportunity cost of cheese in the foreign country. और चीज का opportunity cost जिस कंट्री में कम होगा, home country will have comparative advantage in that country. तो इसे आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए पहले इसको अप्लाई कर लें और ब्रीफली कुछ पॉइंट आप रजिस्टर में नोट करते जाएंगे जिस ऑर्डर में क्लास रिमेंबर थ्रू आउट रहनी है. कुछ बेसिक पॉइंट आप स्टार्ट का है उसको नोट कर लेगा, जस्ट वन पैराग्राफ. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जस्ट वन पैराग्राफ राइट डाउन. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय रिकार्डो. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय रिकार्डो. This model of international trade, this model of international trade, this model of international trade is also referred as 2/2/1 model. This model of international trade is also referred as 2/2/1 model. उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. You know 2 for home country and foreign country, next 2 for cheese and wine, and third one for factor of production. According to this theory, a country has comparative advantage. According to this theory, a country has comparative advantage. A country has comparative advantage in that line of production. In that line of production. In that line of production, in which opportunity cost is lower. In which opportunity cost is lower as compared to other country. As compared to other country. This approach of international trade, this approach of international trade in which trade arises, this approach of international trade in which trade arises due to difference in labor productivity, due to difference in labor productivity, is known as a Ricardian model of international trade. Is known as a Ricardian model of international trade. Is known as Ricardian model of international trade. ठीक है, ब्रीफली आप पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे. पहला पॉइंट इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेट होता है. तो अगर कभी पीपीएफ का इक्वेशन लिखने को कहा जाएगा तो आप इक्वेशन ये लिखेंगे, एएलसी एलडब्ल्यू वगैरह गिवन होगा. प्लॉट करने को कहा जाएगा तो रिमेंबर इस इंटरसेप्ट पे लिखना है एल बाई एएलसी, यहाँ लिखना है एल अपॉन एएलडब्ल्यू, वट एवर बी द एग्जाम्पल. जस्ट
अटेम्प्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं, उससे थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 3 के बैक में गिवन है. फर्स्ट प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1, रादर आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आप इस फॉर्म ले. क्वेश्चन नंबर 1 भी है और क्वेश्चन नंबर 2 भी है. इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस फॉर्म: होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री. The labor available with home country is 1200 hour and labor with foreign country के पास लेबर फोर्स अवेलेबल है 800 आवर. and by using this time they are producing two goods, one is apple and other is banana. तो एप्पल के लिए यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट कैसे लिखेंगे? जैसे ALC लिख रहे थे वैसे लिखेगा. ALC, C फॉर चीज के लिए था, यहाँ पे एप्पल के लिए ALA लिख देंगे. और दूसरा आ जाएगा ALB बनाना के लिए. होम कंट्री का रिक्वायरमेंट गिवन है. द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन एप्पल प्रोडक्शन इज 3 का मतलब 3 आवर. 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में इट विल बी टेकिंग 3 आवर और फॉर बनाना इट इज 2 आवर. होम कंट्री में ये है. फॉरेन कंट्री के लिए स्टार मार्क कर लेंगे, ALB स्टार. फॉर फॉरेन कंट्री इट इज गिवन एज फॉरेन कंट्री यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन एप्पल. एप्पल के लिए 5 आवर एंड फॉर बनाना इट इज 1 आवर. ये क्वेश्चन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू ड्रॉ. फर्स्ट पार्ट कहा जा रहा है ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीपीएफ ड्रॉ करने में. एक्सेस पे आपको एप्पल जो पहले कहा जाए वो एक्स एक्सेस पे, जो बाद में आ रहा है वो वाई एक्सेस पे. हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या लिखने को कहा था? इस कॉर्नर वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा? L/AL लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? L/ALA. तो ये नंबर हो गया L/L/ALA. न्यूमेरिकल टर्म में 1200/3, 400 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा. और यहाँ लिख दीजिएगा आप L/ALB. तो 1200/2, दिस नंबर विल बी 600. 600 और 400 का इंटरसेप्ट आ जाता है. 600 और 400 के इंटरसेप्ट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लेंगे. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया होम कंट्री के लिए. सिमिलरली फॉर फॉरेन कंट्री. कोई भी कंफ्यूजन है तो इस सेकंड वाले केस में क्लियर कर लेंगे. एप्पल की क्वांटिटी यहां कितनी हो जाएगी? L*/AL*. तो 800/5, 800/5 is 160 and 800/1 800. 800 और 160 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाने को कहा गया. नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है, गुड्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है. तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ? इजी है, आप पहले स्लोप निकाल लो. पीपीएफ का जो स्लोप होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर करेगा एप्पल के लिए. तो अगर आपने इंटरसेप्ट यहाँ 600 और 400 बना रखा है तो स्लोप हो जाएगा वैसे भी परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया. तो 600/400 या फिर क्या लिखेंगे? ALA/ALB. तो स्लोप इज ALA/ALB. दैट विल बी 3/2. So slope is 3/2 and what does slope measure? Slope will measure opportunity cost of apple. If you know opportunity cost of apple, you can find opportunity cost for banana. उसका इनवर्स कर देना है, 2/3 हो जाएगा. तो 3/2 is opportunity cost of apple. Similarly, foreign country में slope क्या हो गया? 800/160, that is 5. तो 5 is opportunity cost of apple in foreign country. तो क्लियरली बताएंगे
विच कंट्री हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एप्पल। तो एप्पल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरेन कंट्री में 5 है, होम कंट्री में 3/2 है। तो जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा दैट कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज। सो होम कंट्री विल प्रोड्यूस और स्पेशलाइज इन एप्पल एंड फॉरेन कंट्री विल स्पेशलाइज इन द अदर लाइन ऑफ प्रोडक्शन विच इज बनाना। तो होम कंट्री के लिए आपने ये ड्रॉ कर दिया, फॉरेन कंट्री के लिए कर दिया। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें थर्ड पार्ट में ये काम कर सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद यू कैन जस्ट ड्रॉ अ टेबल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक टेबल बना दीजिएगा। आपने एप्पल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रखा है 3/2 और वहां 5, इतना याद रखना है। 3/2 और 5 आया था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एप्पल के लिए और बनाना के लिए, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री, इस फॉर्म का एक टेबल वहां ड्रॉ कर देंगे पेपर में जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। एप्पल के लिए होम कंट्री में आया था 3/2 और बनाना फॉरेन कंट्री में इट वाज 5। बनाना के लिए जस्ट अपोजिट करना है, 2/3 यहाँ लिखना है या 1/5 कर देना, ठीक है। और ये ड्रॉ करने के बाद डोंट कंपेयर दीज टू वैल्यूज, आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है। तो फॉर एप्पल विच कंट्री हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एप्पल के लिए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होम कंट्री के पास है, तो होम कंट्री विल स्पेशलाइज इन एप्पल। एंड नाउ कंपेयर इट फॉर बनाना। बनाना के लिए यहाँ 2/3 है और यहाँ 0.2 है, 1/5 है। So for banana, foreign country has lower opportunity cost. So this country will specialize in apple and foreign country will specialize in banana. That is the simple form of trade. But ये 2 elementary question है to begin with. Start करते समय आप इस elementary question से start करते हैं। टर्म से फेमिलियर हो गए आप, ALC क्या है, ALW क्या है। तो जब कभी ALC ALW वगैरह लिखा जा रहा है तो ALC इज यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस चीज, जो टर्म होगा वैसे लिख देना वहां पे आप। अगर मैंने ALA लिखा है तो इसको पढ़ रहा हूं मैं यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एप्पल। अगर ये ALB लिखा है तो यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस बनाना। ALC लिखा है यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस चीज। अगर ALF लिख दो तो इसका मतलब हो गया यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फूड। जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे लिखते जाएगा। क्लियर है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब इंडिकेट करता है कि व्हाट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what economy will actually produce. Now what economy will actually produce, PPF तो बता रहा है कि what economy can produce, but what economy will actually produce, that depends upon a relative price. तो relative price and supply की बात है। Just one more point. Next part में आप पहले ये समझ लेना, अभी भी ट्रेड की बात में नहीं कर रहा, ट्रेड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होना है। अभी सिर्फ आप जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो समझ रहे हैं, ट्रेड की बात अभी नहीं हुई है। सपोज स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली होम कंट्री। नाउ होम कंट्री हैज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर। दिस लेबर इज फ्री टू मूव टू वर्क इन द इंडस्ट्री ऑफ चीज और टू वर्क इन द इंडस्ट्री ऑफ वाइन। क्वेश्चन नहीं बनता है कि दिस लेबर विल प्रेफर टू वर्क इन विच इंडस्ट्री। लेबर फ्री है, लेबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मार्केट कॉम्पिटिटिव है। सो दिस लेबर इज फ्री टू वर्क इन चीज इंडस्ट्री और फ्री टू वर्क इन वाइन इंडस्ट्री। बट रिमेंबर, लेबर कैन नॉट मूव बिटवीन द कंट्री। लेबर इज मोबाइल विद इन द कंट्री बट लेबर इज इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। सो लेबर इज फ्री टू मूव इन चीज एंड वाइन इन द होम कंट्री इटसेल्फ। अब लेबर ऑब्वियसली उस मार्केट में वर्क करेगा या उस इंडस्ट्री में वर्क करेगा जहां पे वर्कर को वेज हायर मिलता है। और वेज हायर डिटरमाइन करने के लिए रिकॉल करके बताएंगे हाउ वेजेस आर डिटरमाइन। इफ आई से मार्केट इज कॉम्पिटेटिव देन हाउ वेजेस आर डिटरमाइन। इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट वेज गेट डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। VMP के अकॉर्डिंगली वेज का डिटर्मिनेशन होता है, वहां तक की माइक्रो आपको यूज करनी है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिटरमाइन द वेज एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है तो मुझे इसे प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना
and it will be price of what? Price of the product produced by the labor. So price of product, that is cheese. So price of cheese multiplied by marginal product of labor in cheese. अब जरा ध्यान से बताएंगे what is marginal product of labor in cheese. If I say ALC is 4 hour, so is ALC marginal product? क्या ALC marginal product है? ALC 4 hour का मतलब क्या हुआ? To produce 1 unit of cheese it will take 4 hour. और marginal product of labor का मतलब in 1 hour how many unit of cheese labor can produce? So if it take 4 hours to produce 1 unit, in 1 hour labor can produce 1 by 4. 1 by 4 का मतलब 1 by ALC. पॉइंट दोबारा समझेंगे. ALC 4 hour है. To produce 1 unit of cheese it will take 4 hours. So in 1 hour economy can produce 1 by 4 unit of cheese. और 1 hour में जो प्रोड्यूस किया जाता है वही मार्जिनल प्रोडक्ट होगा. तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 1 अपॉन ALC. I hope concept clear है. Marginal product is not ALC. Inverse of ALC is marginal product. Clear? तो वेज इन चीज हो गया PC अपॉन ALC. नाउ वाइन इंडस्ट्री में अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे. तो वेज विल बी इक्वल टू VMP हियर ऑल्सो. यहां हो जाएगा प्राइस ऑफ वाइन मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हियर ऑल्सो. सो PW इनटू 1 अपॉन ALW. सो इट विल बी PW अपॉन ALW. ये वैल्यू वेज वाइन में है और ये वैल्यू वेज इन चीज इंडस्ट्री है. अब यहां जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं इसको जरा ध्यान से कॉपी कर लेंगे. ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा है कि हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड इन चीज एंड वाइन इंडस्ट्री. वेज इन चीज ये हो गया, वेज इन वाइन की वैल्यू ये होगी. अब पॉसिबिलिटी है. कंडीशन नंबर 1, इफ, रिमेंबर ये बिग इफ है अभी वहां पे. एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी उसकी बात नहीं है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. इफ आई से PC upon ALC is greater than PW upon ALW. What does it mean? What is PC by ALC? PC by ALC is wage in cheese and PW by ALW is wage in wine. तो अगर मैंने कंडीशन ले रखा है कि PC by ALC ग्रेटर है, इसका मतलब होता है wage in cheese industry is more and wage in wine industry is less and worker is free to move between cheese and wine. So all worker will go to produce only cheese. But if all worker is going to produce only cheese, economy is producing actually only cheese. So economy is specializing in only cheese. तो पहला कंडीशन रखिएगा, if PC by ALC is greater than PW by LW, in that case economy will produce only cheese. Same thing could be written as, इस कंसेप्ट को जरा दोबारा पढ़ेंगे. PC by ALC greater than PW by LW could be written as PC upon PW greater than ALC upon ALW. सेम कंडीशन है जिसको मैंने ऑल्टरनेट फॉर्म में लिखा है. अब आप ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ALC by ALW. This ALC by ALW is nothing but opportunity cost. And what is PC by PW? PC by PW को ऑपरेट करते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज, जैसे P1 by PW होता है या PX upon PY है. तो if relative price of cheese is greater than opportunity cost of producing cheese, then country will produce only cheese. And this is your first concept in this chapter. A country will produce only cheese if relative price of cheese is greater than opportunity cost of producing cheese. Relative price greater than opportunity cost होने पे economy will be producing only cheese. But remember यहाँ पे possibility अभी मैं less कर रहा हूँ. So what could be the second possibility? Second possibility is PC upon ALC is less than PW upon ALW, which means alternate form में अगर लिखें तो PC by PW is less than ALC by LW. तो अगर ये कंडीशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वेज वाइन में ज्यादा है और चीज में कम है, देन ऑल वर्कर विल मूव टू प्रोड्यूस वाइन and economy will be producing
ओनली वाइन इन दैट केस। तो अब आप ये बताओगे इन विच केस कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ द गुड्स। Country can produce both the goods only when in both industry worker will move, and when in both industry worker will move. In both industry worker will move only when wages in both industry are same. So third possibility है if PC upon PW is exactly equal to ALC by LW, then wage in both sector will be same. And if wage in both sector will be same, then economy, remember यहाँ पे ये नहीं करे कि necessarily produce both the goods, you can say economy can produce both the goods. Economy can produce both goods. both goods प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी तभी होती है जब PC अपॉन PW की वैल्यू ALC by LW के एग्जैक्टली बराबर होगी। तो एक पॉइंट आप ये बताओ कि इफ वन कंट्री इज नॉट ट्रेडिंग विद द अदर कंट्री, इफ अ कंट्री इज नॉट ट्रेडिंग, देन दैट कंट्री मस्ट प्रोड्यूस बोथ गुड्स, बट टू प्रोड्यूस बोथ गुड्स पीसी बाय पीडब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू एलसी बाय एलडब्ल्यू। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि विदाउट ट्रेड प्राइस आप बताओ, तो विदाउट ट्रेड प्राइस क्या हो सकता है? विदाउट ट्रेड में तो कंट्री मस्ट प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, and country can produce both the goods only when PC by PW is equal to ALC by LW. So without trade price ratio is equal to ALC by LW, and this price ratio is also referred as autarky price. Autarky का मतलब होता है country in isolation. So if a country is in isolation, that country is not trading, then that country must produce both the goods, and country can produce both the goods only when PC by PW is equal to ALC by LW. बट इफ ट्रेड इज अकरिंग, ट्रेड अगर पॉसिबल है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि होम कंट्री में प्रोड्यूस ओनली चीज, एक्सपोर्ट द सरप्लस चीज एंड इंपोर्ट वाइन। फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस ओनली वाइन, एक्सपोर्ट द सरप्लस वाइन एंड इंपोर्ट चीज। सो इफ ट्रेड इज पॉसिबल, देन कंट्री में प्रोड्यूस ओनली चीज, सेकंड कंट्री में प्रोड्यूस ओनली वाइन, एंड दे कैन बी बेटर अप बाय एक्सचेंजिंग गुड्स। बट इफ कंट्री इज नॉट ट्रेडिंग विद द अदर कंट्री, इन दैट केस country must produce both the goods, but it requires that relative price must be equal to ALC by LW. Remember यहाँ पे अभी एक बिग इफ लगा हुआ है, हमने तीन पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया है। आउट ऑफ दीज थ्री पॉसिबिलिटी विच पॉसिबिलिटी विल एक्चुअली अकर, दैट डिपेंड्स फर्दर ऑन रिलेटिव सप्लाई एंड रिलेटिव डिमांड। तो यहाँ पे अभी आपने सिर्फ पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रखा है कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। पॉइंट को मैं रिकैप एक मिनट के लिए कर दे रहा हूं। मॉडल जो आप रेफर कर रहे हैं वो 2x2x1 मॉडल है। टू कंट्री प्रोड्यूसिंग टू गुड्स बाय यूजिंग ओनली वन फैक्टर प्रोडक्शन। A country will have comparative advantage only when opportunity cost of producing a good is lower in that country as compared to the other country. That is second thing. A country will be producing or specializing in only one line of production only when relative price of that good is greater than the opportunity cost of producing that good. Relative price अगर opportunity cost से ज़्यादा होगा, only then that country will produce both the goods. तो अगर चीज का relative price चीज के opportunity cost से ज़्यादा है, then country will produce only चीज। तो ये हमने अलग अलग possibility कर रखी है। Actual में कौन सी possibility exist करेगी, उसके लिए रिलेटिव सप्लाई और रिलेटिव डिमांड कब होगा। फर्दर ये कंसेप्ट जनरलाइज भी किया जाएगा। जनरलाइजेशन का मतलब है, अभी आप पढ़ रहे थे 2x2x1 मॉडल, तो जब दो कमोडिटी होते हैं फिर तो इजी है। इफ वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय होम कंट्री, अदर प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेन कंट्री। बट सब्सिक्वेंटली इसको मैं जनरलाइज करूंगा, ये हो जाएगा 2/n/1, टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग n नंबर ऑफ गुड्स बाय यूजिंग ओनली लेबर। अगर n नंबर ऑफ गुड है, 10 गुड है, देन यू हैव टू डिटरमाइन how many good will be produced in home country and how many good will be produced in the foreign country, and that will become an application of the Ricardian model। वो Ricardian model का application हो जाएगा। तो याद रखिएगा, स्टार्ट से कंसेप्ट जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सेक्शन ए का पूरा जो अप्रोच है वो एंटायर अप्रोच माइक्रो की तरह चलेगा। मतलब ओल्ड सिलेबस में माइक्रो का एक यूनिट हुआ करता था इंटरनेशनल, जिसको सब्सिक्वेंटली अब एक सेपरेट पेपर के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन का अप्रोच कंप्लीट माइक्रो होगा, और सेकंड सेक्शन जो रिमेनिंग 40% है उसका अप्रोच मैक्रो है। एंड दिस पेपर इज मोर यूजफुल। अगर स्टिल कॉलेज में अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है
अगर आपने अभी तक चूज नहीं कर रखा है और ऑप्शन अगर दिए जा रहे हैं तो डोंट लीव इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स आइडियली ये है। अदरवाइज अगर कॉलेज में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यू कैन नॉट चूज बोथ, देन यू हैव टू गिव अप वन थिंग, बट ट्राई टू कीप इंटरनेशनल एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आफ्टर दैट पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड आफ्टर दैट समथिंग एल्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आपका कंपल्सरी पेपर है, तो यहाँ तक का जो कंटेंट है फर्स्ट क्लास में आप यहाँ तक कर लीजिए। क्लास नंबर 2 से यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे। अप्रोच न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने होने वो क्लियर रखिएगा। सिलेबस के अंदर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन शैल बी 15 to 20 मार्क्स। 15 से 20 नंबर का मतलब हो गया अराउंड 2 और 3 सब पार्ट्स हो सकते हैं क्वेश्चन में, 2 to 3 सब पार्ट हो सकते हैं क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वाले, उससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेक्शन बी में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ओनली इन सेक्शन ए देयर इज वन न्यूमेरिकल, तो सेक्शन ए के अंदर न्यूमेरिकल हो सकता है। तो कंटेंट के फर्स्ट पेज पे जहां पे आपने लिखा है उसको एक बार जरा आप मार्क कर लो। इसमें जहां न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 रिकार्डियन मॉडल का। स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एचओ मॉडल का कोई न्यूमेरिकल नहीं है। चैप्टर नंबर 9 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी है, टैरिफ एंड कोटा, वहां से दूसरा न्यूमेरिकल हो जाता है। एंड सम न्यूमेरिकल फ्रॉम न्यू ट्रेड थ्योरीज, और चैप्टर नंबर 7 होगा। तो चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 ये आप 3 चैप्टर मार्क कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। विल कंटिन्यू विथ दिस चैप्टर नंबर 3 रिकार्डियन मॉडल। फर्स्ट क्लास का रखा, सेकंड क्लास में होपफुली वो चैप्टर ओवर हो जाता है। तो क्लास नंबर 2 में चैप्टर नंबर 3 रिकार्डियन मॉडल अभी कंटिन्यू रहेगा। क्लास रिमेंबर ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है। ऑफलाइन की क्लास अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन की क्लास कर रहे हैं, दे हैव सम प्रॉब्लम इन कंसेप्ट बिकॉज दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चन लाइव, सो दे कैन कम एट द सेंटर। आप या तो कॉल करके क्वेरी कर सकते हो आप, या फिर सेंटर में आके कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई इशू आपको होना चाहिए। कंसेप्ट जो से जैसे क्लास रिकॉर्ड होती जाएगी वैसे वैसे वो क्लास अपलोड होती जाएगी। अगर कोई भी इशू आता है तो आप फ्रीली कॉल कर लीजिए, या आप सेंटर पे आकर के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस क्लास विल बी बेनिफिशियल एंड दिस ऑनलाइन वेंचर विल आल्सो बी बेनिफिशियल टू मेनी स्टूडेंट्स। थैंक यू।